laptop? Can you raise your hand? Can you raise your hand? Not having laptop? Oh, very good. Please, some more, please. Those who are just connected with the mobile, not having the laptop. Oh, very good. So, not even laptop, desktop, you don't have anything, right? Let me record this. So, you all don't have a laptop, right? Not even a desktop. Those who are there, I could see around 36 students are here in this meeting without laptop. I'm very happy that they are doing the course BSc in IIT, and that also they are saying that they don't have a laptop or a desktop. I do not know how come you all have attended your junior college last year. I could say right from 11th standard and 12th standard how you have given your examination without a laptop, right? And how do you manage when we write a program with the small screen, mobile screen? How can you attend the lectures? This shows that how much you are interested in your studies, right? You don't want to write the program. So I'll be more happy with the other students, other remaining students, those who are having laptop. Okay, I'll be more interested them. At least I'll appreciate their what you can say, the confidence, like they are ready to learn, they are eager to learn. They are not saying no sir, I don't have a laptop. They are having a laptop. You ask me, if I don't know, I'll ask you the doubt. You have to clear our doubts. That's all, right? This is what it is, nothing else. So now please, those who have raised the hand, now put your hands down. I'll call those students those who are having the laptop. I'm calling those students those who are having the laptop. Those who are having the laptop, that's all. Laptop or a desktop. All those students those who are having a laptop or a desktop. So I could see the total is 8 or 9. Now one more interesting thing I could find out here. Total number of students saying having a laptop is 9, say. Not having a laptop is 34. 9 plus 34, the total is 9 plus 34 is how much? Students, 9 plus 34? What is 34 plus 9? 43. 43. But right now in the meeting there are 60. I do not know what happened to others, what they have, right? Number of students in the meeting are 60. So remaining 17 students, what they are having? Students, let me talk to all these good students. I'll call first Arya. Arya Nair, please share your screen. Arya Nair. Arya Nair, are you there? Arya? What happened? Patel Ifat. Ifat, are you there in the meeting? Yes, sir. Please share your screen. Please share your screen. Is it done, sir? Yes, start with your C programming. Very good. I'm very happy. I'm very happy. You're practicing C++, Ifat, right? Ifat? Hello? Ifat? Hello, sir. Yes. Sir, once if I just turn on turbo, I am not able to unmute myself. Oh, So, like, what to do? first is Alt and Tab. You have to switch on your two windows, Alt Tab together, right? Alt and Tab. So what will happen then? Your CCA window will be minimized, and then you can unmute yourself. Yes, right? Is that clear? Okay, sir. Yeah.
Now the question is coming here is question if you need to write a program, very simple program. Others will also be writing that it's related to tax, income tax. Have we written any program till now about income tax, students? No, sir. No, right? We haven't written any program. So what happens in our country? In our country, suppose somebody is getting a salary, annual salary of 5 lakhs, say, then tax is zero. If your salary is less or equal to 5 lakhs, your tax will be zero. I will call it other way around. Say I will change the system here. If it is 3 or less, then it is 0. Between 3 to 5, it is 10%. Between 3 to 5, it is 10%. 5 to 8, it is 20%. And more than 10, it is 30%. I'll repeat, up to 3 lakhs, tax is 0. If your income is between 3 lakhs to 5 lakhs, you have to pay 10%. And if it is between 5 and 8, you have to pay 20%. And if it is above 8, then you have to pay 30%. Right, students? Is it clear? 0 up to 3, 5 to 10, sorry, 3 to 5 is 10%, 5 to 8 is 20%, and more than 8 is 30%. Is that clear? Hello? If what Yes. is the question is clear? Yes, sir. So you have to write a program. So you need to accept the income from someone. I will enter some income and you need to calculate the tax. Now suppose I'm entering, say, income is say 5 lakhs. So how much tax I need to pay without writing a program? Ifat, can you tell me what will be my tax amount if my income is 5 lakhs per annum? Ifat, 5%. what percent? 5%. So can you just repeat? I guess I just messed it up. I said if the income is up to 3 lakhs, tax amount is 0. Write somewhere. Up to 3 lakhs, it is 0. 3 more than 3 lakhs, up to 5 lakhs, that is between 3 and 5, it is 10%. Between 5 and 8, it is 20%. Above 8, it is 30%. So what is the tax? So if my income is say 5 lakhs rupees, what is my tax amount? That is what I'm interested in. Can you write a program? 20%. I didn't get Ifat. You are incorrect. Till 5 lakhs, sir, right? My income, suppose it is 5 lakhs rupees, exactly 5 lakhs rupees. How much 10%, tax I have to 10%. pay? So could you tell me the amount? 50,000. How much? Very good, Ifat. I am very happy. Is there is any student in this class who is agree with Ifat or wanted to change the answer? I didn't get carefully. How come you are saying 20%? Right. No. You just said 5 or more. That is, if my income starts from 5 lakhs and last my one unit place is 1, right? 5 lakh 1, from that onwards, 5 lakh 1 to up to 8 lakhs, it is 20%. But up to exactly 5 lakhs, it is 10%. That is 3 to 5, it is 10%. Up to 5, it is 10%. More than 5 and up to 8, it is 20%. More than 8 and up to more than 8 is 30%. CAF. So up to 5, I'm telling you it is 10%. So what Ifat has said 50,000, is it correct? There are so many brains sitting, 62 students in this class. Can you tell me what is the tax amount? What she said is correct. Students. Oh, let us, all of you please come in the video. Immediately all of you come in the video.
All of you, please come in the video. Ifat, you unshare your screen. Ifat, you unshare your screen. Ifat, you unshare your screen. All of you, please come in the video. Is it done, sir? Yes, it is done. Now you can see how many are there in the screen in the video. I could see only 2 students. 3, 4. All of you, please come in the video without wasting much of your time. There are 60 students, but I could see only few students in the video. Oh, 16 students are there in the video. And all these are all future software engineer. I'm talking to the future software engineer. And when I ask very simple question, sitting along with them as a teacher, like if some outsider is giving you some kind of software, you need to develop, right? And if the client is going to enter the income as say 5 lakhs rupees, the software engineers are telling them, sir, your tax is 50,000. Now, what if my income is 6 lakhs rupees? Then that also you just tell me so that I can go ahead. What if my income is 6 lakhs rupees? Then how much I have to pay? If the income is 6 lakhs rupees, what is my tax amount? बोलो स्टूडेंट्स, जल्दी से बोलो. अगर 6 लाख है तो कितना टैक्स देना चाहिए? मैंने आपको बताया कि 5 से 8 के बीच में 20% देना है. More than 8, it is 30%. Aishwarya, please answer. If the income is 6 lakhs rupees, what is the answer? Aishwarya. Where is Aishwarya? Mr. Harish. If the income is 6 lakhs rupees, what is the tax amount? 1,20,000. 1,20,000. We should clap for Aishwarya. Right? Everyone, please clap for 12,000. 12,000. 12,000. Who is answering this 12,000? Who has answered this 12,000? Sir, me, Samiha. Samiha, right? I couldn't see you in the video. Yes, Where are sir. you right now? Samiha, I can't see you in the video. Samiha. So give me a second. I'll come in the video. Sania, what she said is correct? Sania? No, sir. 1,20,000 is correct. 1,20,000 is correct. Your friend is incorrect. What she said is 12,000 is incorrect. Who else wanted to play with 1,20,000? Sweta Maurya? 20,000. I really appreciate CAF के साथ में मेरा बात करने को अच्छा लग रहा है. What he said is correct. Sweta Maurya? Sweta Maurya, can you talk at least with the teachers? Sweta, unmute yourself first and tell me the answer. Haji? Sweta, what is your answer? Sweta. Chalo, I'll talk to someone else. Ritika, please ये बंद करो, तुम्हारा unmute रखो. Ritika, let us go for one more question. What if my income is 9 lakhs rupees? How much tax I have to pay? Ritika. If my income is 9 lakhs rupees, how much tax I have to pay? Ritika. I said if my income is more than 8, I have to pay 30%. Between 5 and 8, 20%. Between 3 and 5, 10%. Up to 3 lakhs, zero tax. No tax. Tax is nil.
Ritika, what is your answer? Tanisha, you also can help her. My income is 9 lakhs rupees per annum. So how much tax I need to pay? Hello, sir. हाँ बोलो बोलो Ritika. Sir, 2,70,000. Make a note 2,70,000. 2,70,000 tax I'll be paying, right? I'll be more happy with all these students. Tanisha, हाँ बोलो बोलो. Kaf, you are saying something. अच्छा थोड़ा और ज्यादा है 3 lakhs है right? No, 3 lakhs कभी होएगा? Ritika will clarify whatever answer you are giving. 3 lakhs जब होगा जब मेरा income 10 lakhs होगा, right Ritika? Yes, sir. Ritika, yes. What formula she is applying, I have understood. If it is going to be 10, because it is 30%. So 9 lakhs ka 30% is 2,70,000. That is what he is saying. It is correct, carefully. Or 10 lakhs ka 30%. It is 30,000, yes. So I really do not know how come if the 6 lakhs का 1,20,000 किसी ने मुझे बोला हुआ है, तो 9 lakhs का 30,000 कैसे होगा कैप? और सुनो मेरी बात कैप, तुमने ही मुझे अभी थोड़ी देर पहले बोला यू एंड इफत सर की जो 5 lakhs का है 50,000 है. इफत ने मुझे आंसर दिया हुआ है कि अप टू 5 lakhs इट इज 50,000, राइट? यस नो? सो देन इतना तो कॉमन सेंस लाओ बाबा कि अगर 9 lakhs है तो टैक्स बढ़ेगा कि 30,000 हो जाएगा. जब हमने 5 लाख का 50,000 बोला हुआ है तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि 9 lakhs का 30,000 हो ही नहीं सकता है, राइट? यू Hello, गो एज sir. पर योर स्टेटमेंट. हाँ बोलो. Sir, for 5 lakh, will it be 20,000? Now, Ifat, yes, now you are correct, Ifat. Now you are correct. I think someone is there behind you who is helping you right now, right? Oh, sir. No. No, you applied your brain, right? Yes, sir. Yes, very good. And no one is applying here brain what Ifat has thought right now. She is correct now. And if with this brain, she could answer for 6 lakhs also. Can you answer 6 lakhs ka tax, Ifat? Just a minute, sir. And then we will discuss, because see, first we will discuss the problem, then only we could write the program. जब आप क्लाइंट के साथ में जब बड़े होके सॉफ्टवेयर इंजीनियर होके बैठोगे, then you need to discuss the problem, what your client want. Accordingly, you can write on the software. So right now we are discussing it. Yes, if for 6 lakhs, 3,000? how much? 40. Yes, Ifat, it is 40,000. For 6 lakhs, it is 40,000. So those who said 120, it is wrong. And for 9 lakhs, how much, Ifat? सब बच्चे कंफ्यूज है बाबा, कहां से इफत आंसर दे रहे हैं, 20 कहां से आया, 40 कहां से, आई रियली डू नॉट नो. आई रियली डू नॉट नो कहां से आ रहे हैं आंसर. But don't worry, let her answer, then I will explain you all this answer, what she is giving us, how she is giving us. So 1,10,000. 1,10,000. 1,10,000, Ifat, you are absolutely correct. 1,10,000 is for 9 lakhs. Let us students take one by one. Suppose the income is 5 lakhs, right? So 5 lakhs में 3 lakhs तो आप मुझे छोड़ दो. आप बोल रहे हो ना कि 3 lakhs तक में आपको कोई टैक्स नहीं है, 3 lakhs से जो ऊपर होगा उसका आपको टैक्स देना है. तो 3 lakhs से 5 lakhs तक जाने के लिए मेरे पास केवल 2 ही लाख है. अब उसका ही टैक्स लोगे कि 5 लाख का टैक्स देने वाले हो? क्या बोला गया आपको? अगर मान लो आपकी इनकम 3.5 लाख होती, 3,50,000, तो आपका 3 lakhs तो फ्री है ना. उस पर टैक्स क्यों लगा रहे हो आप लोग? उसको फ्री करो. तो 5 लाख की बात हो रही तो 3 लाख पहले हटा दो, उससे जो बचा हुआ 2 लाख है उसके ऊपर 10% लगाओ तो कितना होगा? 20,000 per lakh, 10,000, because 10% up from 3 to 5, 3 lakhs to 5 lakhs, the tax percentage is 10%. So for 2 lakhs rupees, 10% of 2 lakhs is 20,000. So up to 5 lakhs, I hope it is very clear answer, whatever Ifat is giving us.
is 20,000 up to 5 lakhs. The moment it becomes 6 lakhs, now when it is becoming 6 lakhs, now that 1 lakh extra amount which is between above 5 up to 5 we have already calculated it is 20,000 because 3 lakhs wala free hai, next 2 lakh wala 20,000 and next one more lakh, that lakh is coming in 2% ka bracket. Now it is not in 10%, it is in 20%. So what is 20% of that 1 lakh rupees, extra 1 lakh? Which is extra 1 lakh? The one which is above 5 and up to 6. तो वो 1 lakh का कितना हो रहा है 20,000 and वो पहला up to 5 lakhs का 20,000 plus another 1 lakh का 20,000, that is becoming 40,000. And when she said 9 lakhs ka 1,10,000, how come she is telling 1,10,000? Let us find out. Up to 5 lakhs, it is 20,000. Is it clear? Up to 5 lakhs, it is 20,000. 5 to 8 lakhs मतलब 3 lakhs है. 5 to 8 में 3 steps है. और वो 5 to 8 का 20% है, यानी 3 lakhs का 20%. 3 lakhs का 20% मतलब कितना? 60,000. हर एक लाख पे 20,000 देना है. तो 3 lakhs पे कितना देना है? 60,000. Up to 5 lakhs कितना था? 20,000. Up to 8 lakhs कितना हो गया? 80,000. Up to 5 lakhs, 20,000. Up to 8 lakhs, 80,000. Right? Is that clear? Now another 1 lakh rupees which is crossing 8, which is going in 30% ka bracket. So then for that another 1 lakh rupees you have to pay another 30,000 tax. So which is coming out to be 80,000 plus 30,000, which is 1,10,000. Student. So I really do not know, you all don't have any common sense. अगर मान लो किसी का 10 लाख का सैलरी है तो हमारे बच्चे बोलेंगे सर 3 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इफत के हिसाब से टैक्स होगा 1,40,000 रुपए, राइट इफत? Yes, sir. For 10 lakhs rupees, the tax amount is 1,40,000. It is not 3 lakhs. So Ritika, for 9 lakhs, it is not 2,70,000. It is 1,10,000. How come we got Ritika 1,10,000? Can you answer this? If you have understood, Ritika. Ritika, please answer. If you have understood, then explain it to others once again. Ritika, Yes, sir. please explain it to others. So this is the reason, students, you find your programming is going to be very difficult. Your system doesn't. इतना आवाज कहाँ से हो रहा है भाई, Ritika? Yes, Ritika, have you understood? Ritika, Hello, sir. हाँ बेटा, have you understood? Sir, a little bit. I've understood. Okay, I'll tell Ifat to explain the whole thing. Ifat, can you explain the whole thing? Ifat, Yes, sir. please explain to your friends. The tax is applied to the extra चलो amount. एक अपनी लैंग्वेज में बात करो, जैसे अपने बच्चे दोस्त कैसे बात करते हैं वैसे बात करो. अच्छा, तो 3 लाख तक टैक्स कुछ भी नहीं था, नील था, पर जैसे वो इंक्रीज हो गया, अगर 5 लाख का अमाउंट हो गया तो 3 लाख के ऊपर तो टैक्स नहीं लगेगा, जो बचा हुआ 2 लाख है उसके ऊपर 10% का टैक्स लगेगा. तो 2 लाख का 10% होता है 20,000, तो वो एक 5 लाख के ऊपर अपना इनकम टैक्स होगा 20,000. वही 6 लाख का जब आता है तो 5 to 8 के बीच में जो है 30% लगेगा, मतलब 3 से 5 तक जितना भी रहेगा उस पर 10% एंड 5 to 6 का 20%. तो इट विल बी अराउंड 20,000 प्लस 20,000 जो होगा 40,000. जरा कोई आंसर तो करो भाई. इफत क्या कह रही है? जस्ट जिसको नहीं समझ में आ रहा है, रेज योर हैंड, शी विल आंसर यू. वो कह रही है कि 3 लाख तो फ्री है बाबा. अगर आपकी इनकम 4 लाख है और फॉर्मूला जो तुम बता रहे हो 4 लाख, बोले सर ये 10% दे दो, 40,000 टैक्स दे दो. बोले क्या बात करते हो? अरे बाबा 3 लाख इसमें छोड़ो, पहले 1 ही लाख तो ऊपर का है ना. मेरे 3 लाख से ऊपर 1 लाख है, उसके ऊपर मैं 10 टैक्स दूंगा आपको. तो 1 लाख के ऊपर आप कितना लेने वाले हो? 10,000, राइट? बिकॉज माई इनकम इज 4 लाख. हाँ बोलो. सर 6 लाख वाला नहीं समझा, मुझे 5 लाख वाला समझा.
हाँ 5 लाख वाला समझ गया ना। अब जो 5 से 8 के बीच में कितना परसेंट चलता है? 30. 20. 20 30. 20 20 है 20 वही। 20 है, और 8 से अबव है, 8 से अबव 30 है। हाँ तो जो 6 लाख रुपए हो रहा है वो 5 से ऊपर है। हाँ 5 से ऊपर कितना अमाउंट है मेरे पास? 5 लाख से ऊपर कितना अमाउंट है? सही। नहीं 5 मतलब 6 लाख जो बोल रहे हो, अप टू 5 लाख कितना हो रहा है? 20,000 हो रहा है। अब 5 लाख से 6 लाख के बीच में कितना अमाउंट आ रहा है? एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 5 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 1 लाख हो रहा है ना। हाँ 1 लाख सर। तो 1 लाख का कितना परसेंट लगाया जा रहा है 5 लाख से ऊपर? 1 लाख 5 लाख से ऊपर रहेगा तो कितना परसेंट टैक्स लग रहा है? If the amount is more than 5 lakhs, what is the tax percentage? 20. 20. 20. 20 तो सर। वो 1 लाख का कितना देना पड़ेगा अपने को? 1 लाख का 40 सर। 20%। 20 प्लस हाँ 40. तो 6 लाख के ऊपर कितना हो गया हमारा? 40 40,000 हुआ? सर। हाँ हाँ 40 हुआ। समझा। अब हाँ कोई 9 बोल रहा है, 9 कोई 9 लाख बोल रहा है, तो कितना होना चाहिए? देखो अप टू 5 लाख आपका 20,000 है, राइट? क्लियर है? और जो 5 से 8 के बीच में कितने लैक्स आते हैं? बिटवीन 5 एंड 8 3 लैक्स आते हैं, राइट? 3 लैक्स के बीच में हर एक लाख के ऊपर में आपको 20 देना है, 20% देना है। तो 3 लाख के ऊपर कितना टैक्स बन रहा है आपका 20% के हिसाब से? 60. 60। तो अगर हम 8 लैक्स तक जाते हैं तो अप टू 5 लैक्स इट वाज 20,000, 5 to 8 के बीच में 60, सो अप टू 8 लैक्स इट हैज बिकम 60,000, अप टू 8 लैक्स इट हैज बिकम 80,000। 20 कहां तक जा रहा है देखो, स्लैब बाय चलो। अप टू 3 लैक्स 0, 3 to 5 20, 5 to 8 60, सो टोटल कितना होगा? 80,000 अप टू 8 लैक्स। अब कोई 9 लैक्स बोल रहे हैं तो फिर कितना होगा? 9 लैक्स किया था 1 lakh. 1 lakh. तो 1,10,000. नहीं, हाँ तो मतलब ये क्या हो गया कि आपका एडिशनल 1 लाख हो गया। अब ये कितने परसेंट के ब्रैकेट में आ रहे हैं? 30% के उसमें आ रहे हैं, राइट? 8 को क्रॉस कर गए अभी हम लोग, राइट? आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हेलो। 9 lakh का नहीं समझा. 9 लाख का समझाओ भाई। जैसे मैंने क्या बोला, 8, अच्छा 8 लाख का समझ गया। 8 लाख का कितना हो रहा था? 8 लाख का कितना हुआ था बताओ? 80,000. मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूं सीधा राइटिंग में। इज माय स्क्रीन इज विजिबल स्टूडेंट्स? Yes, तो sir. जब हम मतलब लॉजिक ही नहीं समझेंगे तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? बात तो ये हो रही है। इसलिए हर बार हमारी हर चीज को बताना चाहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब हमने बोला था कि 5 लैक्स राइट, तो आपका 0 से 3 लैक्स तक का कितना था? 50। ये जो टैक्स है 0 है। यहां से जो 3 लैक्स 1 से जब स्टार्ट हुआ और अप टू 5 लैक्स, यहाँ पे 2 लैक्स रुपीस थे और इसका 10%, तो ये कितना हुआ था? 20,000, राइट? यस और नो स्टूडेंट्स?
हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब इसके बाद में जो 5 से 8 का जो स्लैब चलता है 5 लाख से 8 लाख, ये 3 लाख रुपीज होते हैं। इसके ऊपर कितना परसेंट चलाते हो सर आप? इसके ऊपर बोलते हैं सर 20%, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 60,000। तो अगर हम 8 लाख तक आ रहे हैं तो देखो पूरा टैक्स जोड़ो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितना हुआ अभी तक हमारा? 80,000 हो गया, राइट? हुआ कि नहीं? अब Yes, sir. यहाँ पे अमाउंट मेरा 9 लाख हो गया। अब 9 लाख ये बाबा ये 8 लाख से तो ऊपर हो गया, ये कितना अमाउंट एक्स्ट्रा? बोले सर ये 1 लाख एक्स्ट्रा है। तो इसके कितना परसेंटेज चलाने वाले? बोले 30%। तो बोले इसका कितना हुआ? बोले सर 30,000। तो टोटल कितना हुआ? बोले सर 1,10,000, राइट? 1,10,000। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर कोई 9 की जगह ये मेरा 10 लाख बोल देता है, 10 लाख, तो मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हुआ? 2 लाख, राइट? 8 के ऊपर कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 2 लाख। तो उसका 30% करोगे कितना हो जाएगा? कितना होगा स्टूडेंट्स? हाँ, कितना होगा बोलो? 60,000, राइट? 60,000. हेलो, तो पीछे का अमाउंट कितना है? 80,000 प्लस 60,000, ये कितना हो जाएगा? 1,40,000, राइट? यस और अब कोई बोल रहा है सर मेरा 12 लाख है, 12 लाख, तो ये ऊपर 8 लाख के ऊपर कितना हो गया? 4 लाख हो गया, राइट? हुआ कि नहीं हुआ? अब 8 लाख के ऊपर 4 लाख है, तो 4 लाख का 30% मतलब कितना होता है? 1,20,000। और पीछे को ऑलरेडी 80,000 है, तो टोटल टैक्स कितना हो गया 12 लाख के ऊपर? सर आपको 2 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, राइट? 2 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। और जो तुम हमारे बच्चे जो अभी तक बता रहे थे 12 लाख के ऊपर, हमारे बच्चे तो मुझे पागल कर रहे थे, बोल रहे थे सर 30%। बोले सर 3,60,000 रुपए देना पड़ेगा, राइट? कस्टमर तुमको मारेगा ऐसा बात करोगे तो तुम। बोले कहाँ का प्रोग्रामर है, कैसा टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, इसको कुछ समझ नहीं रहा है क्या? अगर मान लो मैं बोल रहा हूं मेरा इनकम 3,50,000 है, 3,50,000, तो क्या बोलोगे टैक्स कितना? हमारे बच्चे बोलेंगे सर 35,000 देना पड़ेगा। बोले पागल हो गए? 35,000 देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? बोले सर केवल 5,000 आपका टैक्स होता है। क्या बात किया, ऐसी बात होती है। क्यों 5,000 हुआ रिफत? Yes, sir. Why it is 5,000 only? Because it's extra 50,000 only, and the 10% of 50,000 is 5,000. Yes, because up to 3 lakhs you have been exempted. आपको 3 लाख तक का छूट था। आपका एक्स्ट्रा अमाउंट केवल 50,000 है और उसका 10% आपको देना है, राइट? स्टूडेंट्स, आई होप इट इज वेरी क्लियर। जैसे आपको घर में लाइट के बिल आते हैं और आपको जो भी बिल वाले हैं कंपनीज हैं वो बोलते हैं सर आपको अगर 0 से 100 यूनिट या 200 यूनिट, बोले 5 रुपए पर यूनिट लेंगे हम आपसे, और बोले 201 से 400 चलोगे तो 7 रुपए पर यूनिट लेंगे, और बोलेंगे 400 से 600 चलोगे तो 9 रुपए पर यूनिट चलेगा, और बोले सर फिर 600 से अगर ऊपर चले गए तो बोले सर फिर सीधा आपको 12 रुपए पर यूनिट देना पड़ेगा। ग्रेटर देन 600 किया ना तो बोले 12 रुपए से देना पड़ेगा। बताओ, राइट? या और भी एक स्लैब बना दो, 600 से 800 तक चलोगे तो 12 रुपए, और 800 से ऊपर चले गए तो बोले सर 15 रुपए। तो बताओ अगर मैं पूछता हूँ बाबा मेरा लाइट का बिल यार ये टाइम 300 यूनिट आ गया है तो क्या करूँ? और एक और चीज बताते हैं कि अगर आपका अप टू, हाँ ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, मिनिमम चार्जेस कंपनी बोलता है बाबा 200 रुपीज फिक्स है, 200 रुपीज मिनिमम चार्जेस आपको देना ही पड़ेगा। क्यों? बोले भाई कोई बोलेगा सर मेरा बिल तो क्या बोल रहे हैं 80 यूनिट्स है। 80 यूनिट्स कुछ नहीं सर, हमारा अकेला ही रहता हूँ, रात में कभी आ गया घर पे तो कुछ जलता वलता नहीं। 80 यूनिट्स है, ये बेचारा 80 यूनिट्स को कितना बिल देना पड़ेगा?
मिनिमम चार्जेस 200 रुपीज है। 80 यूनिट्स का बिल कितना देना पड़ेगा इफत? इफत यस सर। कितना बिल देना पड़ेगा बच्चे को? 80 यूनिट्स इसने लाइट कंज्यूम किया है, कितना बिल देना चाहिए इसको? पहले मिनिमम चार्जेस का कहानी ये बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बोले सर मैं तो 6 महीने से मुंबई में ही नहीं हूँ, घर में गाँव गया था, राइट, हमने तो लाइट जलाया ही नहीं। लेकिन उसमें लाइट कंपनी का गलती नहीं है, तुम्हारे घर में मीटर तक लाइट दे रहे कि नहीं दे रहे थे वो लोग? तो बोले उसका पर मंथ आपको 200 रुपीज चार्जेस फिक्स है, 200 100 वट एवर इट इज, वेदर यू आर यूटिलाइजिंग माई सर्विसेज और नॉट यूटिलाइजिंग। आपने कनेक्शन तो नहीं कट कराया ना, वो आपका गलती है, हमने आपके यहाँ सर्विस दे रहे थे ना, तो आप 200 रुपीज मिनिमम फिक्स है। And then other charges depends on how much units of light you are consuming. So if somebody is consuming 80 units, how much bill that person has to pay? Ifat, bill कितना देना पड़ेगा उसको? बोलो 200। कितना? इफत कितना देना चाहिए उसको? 240। 200 and कितना देना चाहिए? आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। चलो एक काम करो, ये देखो 80 कौन से ब्रैकेट में आ रहा है? 80 इसमें आ रहा है, 0 to 200 के अंदर आ रहा है। तो 80 है वो 5 रुपए के रेट से उसको देना पड़ेगा, प्लस 200 रुपए फिक्स देना पड़ेगा, तो ये 400 रुपए बोले फिक्स, प्लस 200 आपका सर्विस चार्ज, 600 रुपए आप टैक्स बिल दे दो। क्या बात किया सर? अगर मेरा 300 यूनिट का बिल आएगा, 300 यूनिट सपोज, तो मैं कितना दूंगा सर? तो सर 300 यूनिट का बात ऐसा है कि पहला जो 200 है आप 5 रुपए से दो, जो एडिशनल 100 यूनिट है, जो एडिशनल 100 यूनिट है, मतलब 300 से मैं ऐसा करता हूं, 300 से 200 को माइनस कर देता हूं। 300 से 200 को क्यों? क्योंकि 200 वाला कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर लिया है, राइट। कोई बोलेगा मेरा 250 यूनिट है, कोई बोलेगा केवल 250 यूनिट है, तो मैं क्या करूंगा, 250 से 200 को माइनस करके इंटू 7 किया, प्लस 200 कर दिया। जरा चेक करो बराबर है क्या स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर। कोई कह रहा है 250 है मेरा, तो बोले कोई बात नहीं, अप टू 200 आपको 5 रुपए देना है। तो उसके 200 से ऊपर कितना गया, बोले चेक कर लेते हैं, माइनस 200 कर दो, जो भी आएगा। कोई बोला 210 यूनिट है, बात कोई बात नहीं, 200 तक का पहले 5 करो, और फिर जो 210 से 200 माइनस कर दो, जो बचेंगे उसका 7 से करो, और बाकी 200 रुपए फिक्स करो आप, राइट। समझ रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट्स? चलो और देखते हैं। कोई बोलता है सर मेरा 450 यूनिट आया है, बार कितना बिल होएगा बताओ जरा आप भी इधर आ जाओ, मैं बताता हूं। पहले 200 का आप 5 से करो, फिर दूसरा 200 का आप 7 से करो, फिर कितना है 450, 450 मतलब इधर आने वाला है, ये ब्रैकेट में आने वाला है। तो बोले सो जो 450 से 400 को माइनस कर दो, 400 यूनिट्स, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए, राइट। यस और नो स्टूडेंट्स? Yes, sir. जितने बचेंगे, यानी 50 यूनिट्स बचेंगे, वो 9 रुपीज के रेट से लगेंगे। देखो क्योंकि 400 से 600 में 9 है, तो इसके 50 यूनिट्स, क्योंकि बाकी उसके पहले वाले जो 400 थे, आधे 5 रुपए से, थोड़े 7 रुपए से, अब जो बचेंगे 9 रुपए से, और प्लस 200, ये आपका बिल होगा, राइट स्टूडेंट? इज दैट क्लियर? Yes. ये ऐसे ही मैं टैक्स वाली बात कर रहा था। बोले कितना इनकम है? बोले सर मेरा इनकम है 3,60,000। बोले कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 3,60,000 से पहले आप 3 लाख माइनस कर दो। कर दिया। बोले सर जो बचेगा उसका 0.1%, क्या अमाउंट आया यहाँ पे? बोले 60,000, तो उसका 10% कितना हुआ? बोले 6,000। बोले वेरी गुड, ये कैलकुलेशन होते हैं। अब कोई बोल रहा है सर मेरा इनकम है ना 6,50,000 है। बोले कोई बात नहीं, 10% क्या होता है बाबा? 10% का मतलब क्या होता है मैथ्स में? 10/100 होता है कि नहीं? 10/100 मतलब क्या होता है, राइट? समझा? यस। अब ऐसे ही 20% बोलेंगे तो मैं 0.2 लिख दूंगा, 30% बोलेंगे तो 0.3 कर दूंगा, राइट?
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आप कोई बोल रहे हैं Yes, सर sir. मेरा इनकम मेरा 7 lakhs है, बोले कोई बात नहीं 7 lakhs है ना, तो अप टू 5 lakhs का आपका कितना हुआ? 20,000 फिक्स है, अप टू 5 lakhs का है कि नहीं है? यस और नो स्टूडेंट्स? Yes, sir. अप टू 5 lakhs का 20,000 और 7 बोल रहा है, तो मैं काम करता हूँ 7 lakhs से 5 lakhs को हटा देता हूँ। क्यों हटा दिया? क्योंकि 5 lakhs का टैक्स मैंने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। अब ये जो बचा हुआ अमाउंट है इसको मैं 20% कर दिया। ये सही है कि गलत है? स्टूडेंट करेक्ट? करेक्ट है ना? क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा? 2 lakhs आएगा, और 2 lakhs का 20% कितना होगा? 40,000 होगा, और प्लस एडिशनल 20,000 यहाँ पे लगा हुआ है, तो कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा, राइट? अब ये सब चीज हमें रियल लाइफ में कभी बोलते हैं ना, आप अपने सेल्समैन को बिजनेस के लिए बोलते हैं, तुम अगर ये क्या बोलते हैं कि अप टू 100 यूनिट्स, या मतलब जैसे लोन वाले होते हैं या दूसरा सेल्स वाले होते हैं, बोलेंगे कि अगर इसको महीने का अगर 200 सेल कर देते हो ना, अप टू 0 to 200, तो मैं आपको 5% एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, 5% दूंगा। और बोले अगर 200 से 400 कर दिया तो सर आप मेरे से 10% ले लो। 400 से ऊपर हो गया, अप टू 600 जा रहे हो, तो सर 15% कमीशन दूंगा मैं आपको, और 600 से ऊपर हो गया तो बोले 20% कमीशन दूंगा मैं आपको, राइट स्टूडेंट? हेलो? तो अगर कोई बंदा बोले सर ये महीने में मैंने 300 यूनिट सेल किया है, तो मेरा कमीशन कितना? बोलो। तो आप क्या 10% में दोगे उसको, कि थोड़ा 5% होगा, थोड़ा 10% होगा, क्या होगा? थोड़ा 5% or 10%. यस, थोड़ा समझो, ये रियल लाइफ में हम बहुत जगह यूज करते हैं, बिजनेस में तो बहुत रहता है, सेल्समैन को कमीशन में, और ऐसा रहता है। जिससे आपको पेरेंट्स ही आपको ये चीजें बात करते हैं, 10th में बात किया होगा, अगर आप 90% लाओगे तो मैं आपको ये देता हूँ, और बोले 95% आ गया तो ये मिलेगा, 98% आया तो ये मिलेगा, राइट? था कि नहीं था ऑप्शन स्टूडेंट्स? यस, ये सब ऑप्शन रहते हैं, हम सब नोटिस नहीं करते हैं कि ये सर क्या बोल रहे हैं। सो नाउ इफ यू कुड अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम, आई मीन लॉजिक, कैन वी राइट द प्रोग्राम फॉर दिस? Ifat, can you write the program for tax? Ifat, Not sure, sir. not sure, right? Yes, sir. Chalo, I will write the program for you all. Just wait. Is my screen is visible? Yes, sir. Yes. तो void main. Look at this. Explain करने के बाद भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, यानी हमें हमारे क्लाइंट ने, फॉरगेट अबाउट आई एम ए टीचर राइट नाउ, आप फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और क्लाइंट क्या करेगा, अपना प्रॉब्लम आपको बताएगा, देखो सर ये मेरा प्रॉब्लम है, प्लीज मेक अ सॉफ्टवेयर फॉर दिस। प्रॉब्लम समझ गया, सॉल्यूशन भी समझ गया, बट still I am saying, sir, I don't have a confidence in my own language. Language means whatever software I've learned, I may not be able to write your program, right? पहला तो सब्जेक्ट समझना चाहिए, then only we can write on the program. Now after understanding the subject, still if we can't be able to program it, then just understand. इसीलिए ये सब्जेक्ट से बच्चे भगते हैं, and no teacher can you explain it like this, you know, every program को इतना dissection करके, like how we are getting this answer, how we can code it. So let us go for the first of all, I think I should go for the long integer here students, क्योंकि हमारे सब अमाउंट 32,000 से बड़े चल रहे हैं, तो लॉन्ग इंटीजर में बात करेंगे, लॉन्ग इंटीजर अमाउंट, और उसके बाद में हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो क्लियर स्क्रीन किया मैंने, और फिर मैंने बोला printf enter your annual income, because tax is based on your annual income. So I'll be reading your annual income, %d, comma,
It's not percent D, it is LD. Nobody's pointing out this, sir. It should be LD because, sir, you are using long integer. Now, as I said, whatever is being discussed, बस उसको ही step by step मुझे प्रोग्राम में लिख देना है कि अगर ये अमाउंट, if the given amount is less or is equal to 3 lakhs, अगर ये less or is equal to 3 lakhs है, तो वेलकम सर, आपका टैक्स है वो 0 रहेगा. You don't have to pay anything, right? Yeah, you don't have to pay anything. Is that clear? Yes, sir. But what if I'm crossing this limit, I'm going beyond 3 lakhs 1 starting, and then if my amount is lying between this and up to less or is equal to, that means up to this, just try to understand. अगर 3 लाख से ऊपर है और 5 लाख तक है तो मुझे कितना करना है स्टूडेंट्स? 10%, राइट? 10%. 10%. अगर 3,10,000 है तो देखो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो देखो जरा. टैक्स विल बी, जो भी आपका अमाउंट है उसमें से आपको मैं 3 लाख का सब्सिडी दे रहा हूं, छूट दे रहा हूं. देखो 3,10,000 है तो पहला 3 लाख सर आपका फ्री, जो बचेगा 10,000 उसके ऊपर सर आप मुझे 10% दे दो. क्या बात किया सर. कोई 3,35,000 वाला आएगा, 3,65,000 वाला आएगा, 385 वाला आएगा, 395 वाला आएगा, 489, जो भी आने दो ना. सो सबके अमाउंट से आई एम सबट्रैक्टिंग 3 lakhs, whatever is the balance you have to pay 10% of that. Is that clear, students? Yes, sir. Is this line is clear to everybody? Yes, sir. Yes. कोई 390 वाला आएगा तो ओके, सो दैट 390 वाला कम अंडर सेकेंड इफ. ओके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके 3 lakhs पहले माइनस कर दो, 90,000 बचेंगे, उसका 10% आप दो. नेक्स्ट, अगर वो बंदा ये ब्रैकेट में नहीं है, उसका अमाउंट बोले सर मेरा तो 6,50,000 है, कोई बात नहीं, आपके लिए भी मैंने प्रोविजन रखा है. अगर आप 5 lakhs को क्रॉस कर रहे हो और 8 lakhs तक आ रहे हो, ये रेंज में अगर आपकी इनकम है तो बोले कोई बात नहीं सर. फिर आप 5 lakhs तक का तो अपने को ये पता चल गया था कि 5 lakhs तक था तो 20,000 तो पहले आपको देना ही देना है, राइट? यस, नो? और आप मैंने 5 lakhs तक का हिसाब कर दिया है, इसलिए अगर आपका 6,50,000 है तो उसमें से 5 लाख मैंने आपके माइनस कर दिए. अमाउंट से सीधा 5 लाख माइनस कर दिया. क्यों कर दिया? क्योंकि ये देखो स्टोरी है उसका. 20,000 कहां से आया सर? 3 लाख तक जीरो था, 3 से 5 तक का 20,000, तो 5 लाख तक का हिसाब किताब हो गया. एक्स्ट्रा जो है उसमें से हम 5 लाख सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको 20% लगा देंगे. समझा? कुछ नहीं समझा स्टूडेंट्स? समझा ना? आप बोले सर नहीं नहीं मेरा 8 lakhs नहीं है सर, उससे भी ज्यादा है, तो कोई बात नहीं सर, 8 लाख से भी ज्यादा है तो उसका भी हम लोग प्रोविजन करके रखते हैं. सो इफ अगर आपका इनकम इज ग्रेटर देन 8 lakhs, ग्रेटर देन 8 lakhs, इक्वल टू भी लिखने का जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन 8 lakhs, ओके, इसको 1 भी लिखने का जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ग्रेटर देन 8 lakhs, greater than 5 lakhs, here also greater than 3 lakhs, and then we should write A. So if it is greater than 8 lakhs, that's all, just only one condition. अगर greater than अगर आप 8 lakhs हैं तो सर आपके लिए हम पहले आप अपने पहले 5 लाख का 20,000 दो, मुझे दे दिया सर. आगे के जो 3 लाख हैं उसका 60,000 दो, वो भी दे दिया सर. आप जो 8 lakhs के ऊपर है सर, मैं आपसे 8 लाख तक का हिसाब किया 80,000, तो 8 लाख मैंने माइनस कर दिया. अब आपका 9 हो 10 हो जितना भी A - 8 कर दिया, 8 lakhs कर दिया, उसके ऊपर आप मुझे 30% आपको देना
I know how come I went to mute, because the reason मैंने हमारे अच्छे बच्चों को पूरा फ्लेक्सिबिलिटी दिया फॉर द प्रेजेंटेशन, उन लोग मुझे ही म्यूट करते हैं. So I will take my rights, right? So I have controlled my class now. Students, is there any doubt in any of the lines, please ask me. I was talking about 8 lakhs ka. 8 lakhs ka first 5 lakhs is this amount, 20,000. The next 3 lakhs ka 60,000. So that means 80,000 is for up to 8 lakhs. So that's the reason I'm subtracting 8 lakhs from my total amount. Okay, because that's 80,000 is already taken care of, and whatever is extra amount, the person has to pay 30%. So then just I need to print here tax amount. Your total tax amount is equal to % LD, comma T, and just get CH किया हमने और फिर हमने सेव कर दिया. ओह, प्रॉब्लम आया. क्यों आया? क्योंकि हमने सेव एस नहीं किया है. सेव एस IT income tax dot C. चलो, अगर हमने 4 lakhs दिया तो टैक्स कितना है स्टूडेंट्स? 10,000, राइट? करेक्ट है क्या? आप बोलो कौन सा एंटर करना है. हम 6 lakhs वाले की बात कर रहे हैं तो 6 दे दो. 6 lakhs दिया, देखो कितना आ रहा है. 40,000 आ रहे हैं. Yes. अब वो सब बच्चे कहांगे जो मुझे 1,20,000 बोल रहे थे, कोई 3 lakhs बोल रहा था. हाँ, 9 lakhs का मुझे किसी ने बताया सर ये तो सर आपको 2,70,000 आने वाला है. तो चलो हम 9 lakhs एंटर करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है. सर ये तो सर 1 लाख, ये 10,000 कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारा मेमोरी का चक्कर चल रहा होगा स्टूडेंट्स. हेलो, समझ रहे हैं? बट इट इज 1,10,000, राइट? Similarly, and this kind of things are also comes when students, जैसे मान लो कोई बाहर से ये आते हैं जो, I mean, when you come from the foreign countries and all, and if you are bringing something more than whatever is beyond the limit, कोई चीज लेके आ गए, बोले वहां से गोल्ड लेके आ गए, वहां सस्ता रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आ गए, ये लेके आ गए, वो लेके आ गए. अगर लिमिट के ऊपर है, आपके पर्सनल यूज से ऊपर है, दैट इट इज फॉर मार्केटिंग पर्पज एंड ऑल, फॉर कॉमर्शियल पर्पज, देन यू हैव टू पे द टैक्सेस इन द एयरपोर्ट. तो चेक करते हैं बाबा कितना है. बोले सर 1 लाख तक का है. बोले 10% लगा दे इसको, फाइन. बोले सर ये तो अप टू 5 लाख का, बोलेंगे 10% लगा दो. 5 से 10 तो बोले सर इसको 50% लगा दो, जितना भी वैल्यू उसका 50% यहाँ भरने दो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो भी रहता है. सर बोले नहीं ये तो 10 लाख है, 10 लाख से ऊपर है. 10 से बोले सर इसको 100% लगाओ. सर ये तो 50 लाख से ऊपर का है. बोले इसको 200% लगाओ. नेक्स्ट टाइम से कभी नहीं लाएगा ये फिर. राइट स्टूडेंट्स? हेलो, Yes, sir. कोई ये जानना चाहता है पापा मुझे कितना टैक्स भरना है फिर एयरपोर्ट में? उसमें भी बाइफरकेशन करेंगे कि अगर जो भी पैसेंजर है, अगर मेल है और उसके पास इतना आइटम है, इतने का है, तो ये इतना % लगेगा, इतने का है तो इतना. अगर फीमेल पैसेंजर है तो उसका कुछ अलग स्लैब लगा देंगे, राइट? तो ये यहाँ हमें देखो रियल लाइफ में सब जगह जरूरत पड़ता है. और तुम्हारे जैसे बच्चे अगर बता देंगे सर कितना बताया, तो बोलेंगे इसको तो इतना देना पड़ेगा. ऐसा नहीं होता है बेटा. Just see just now how we have worked out
अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें कहाँ पे हैं? आपके फोन कॉल में, आपके लाइट के बिल पे हैं, एयरपोर्ट में है, कमीशन में है, टैक्स में है, सब जगह ये चलता रहता है। एंड यू शुड बी वेरी, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इन योर रियल लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करके, ये सब कैलकुलेशन कैसे होते हैं। आप ब्लाइंडली ऐसे मत बोलो 3 लाख है तो बोले सर कितना, 10 लाख से तो 3 लाख हो गया, कैफली कितना हुआ था इसमें, 3 लाख का 10 लाख का कितना होगा? 1,40,000 होता है, राइट? ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसके नंबर की रेंज के बाहर चल रहा है, इसके लिए और कुछ नहीं है। बट अदरवाइज कैलकुलेशन इज करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द कैलकुलेशन। हमको डबल में जाना पड़ेगा। डबल 8 बाइट्स होता है, लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट्स होता है, डबल 8 बाइट्स होता है, लॉन्ग डबल 10 बाइट्स होता है। चलो चेंज कर देते हैं, देख लेते हैं। डबल, वो डबल इज LF, फ्लोट इज 4 बाइट्स और ये LF। अब 10 लाख देते हैं, जरा देखते हैं कितना हो रहा है। आया आप बराबर? समझा स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम हो रहा था? यस। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम होते रहते हैं स्टूडेंट्स। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे अब तुम्हारे साथ कौन से लेवल में काम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सबका सिस्टम है ना पूरा, यू नेवर अंडरस्टैंड कोई भी बात। बताओ, इतना सिंपल चीज मैंने पूछा, ये 10% कितना होगा, 20% कितना होगा, किसी को आता ही नहीं कुछ। हाँ, चलो अभी हम देखते हैं, फिर से ट्रायल लेते हैं। और चलो, अभी मैं बात कर रहा था, सेल्समैन वाली बात कर रहा हूँ, और तुम बताना कि सेल्समैन को बोला गया है कि अगर आप लेस देन 10,000 का बिजनेस करोगे रोज का, तो सर आपको हम कुछ भी परसेंटेज एक्स्ट्रा नहीं देंगे, आपको केवल सैलरी मिलेगा, कमीशन। ये है सेल। लेस देन 10,000 कुछ नहीं मिलेगा रोज का। और बोले सर ग्रेटर देन 10,000 करोगे एंड अप टू 20,000, तो सर हम आपको 5% कमीशन दे देंगे। ग्रेटर देन 20 करोगे एंड लेस और इज इक्वल टू 40,000 करोगे, तो सर आप हमसे 10% कमीशन ले सकते हो। और ग्रेटर देन 40,000 किया है तो सर आप 20% कमीशन ले लो, बस। चलो, अब ये बंदा देखना चाहता है, ये हो सकता है मंथली का भी हिसाब किताब हो। कोई प्रोडक्ट बोले मंथली बेचना है तो बोले 10,000 तक बेचोगे तो हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। 10,000 का रोज का सैलरी पकड़ लो ना, 10,000 का बिजनेस करा रहे हो तो हम कुछ नहीं देंगे आपको। ऊपर बिजनेस करवा रहे हो तो सेल्समैन क्या होता है, जब उनको कमीशन देते हैं तो फिर वो आराम से अच्छा, और उनको सैलरी बेस नहीं रहता है, फिर सैलरी नहीं है उनको, सिर्फ कमीशन पे बिजनेस करते हैं। तो इसीलिए जब तुम कोई भी मॉल में जाओ या मोबाइल की शॉप में जाओ, लोग तुमको दिखाना चालू करते हैं और पीछे पड़ जाते हैं, बाबा कि ये ले लो, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। क्यों? अगर उनको सैलरी मिलेगा तो फिर उनको क्या है, ले चाहे नहीं ले, सैलरी तो हमको मिलने ही वाला है। स्टूडेंट, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उनका पूरा बिजनेस कमीशन पे चलता है, जितना बेचेंगे बस वही उनका सैलरी है। नहीं बेचेंगे, हार्डवर्क नहीं करेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलता है। तो उनका जितना पीस है, बोले एक पीस पे हमको इतना मिलने वाला है, कमीशन रहता है। और वो जो शॉप में खड़े रहते हैं, हर एक कंपनी के अलग अलग कंपनी के लोग होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है शॉप ओनर पे नहीं करते हैं, कंपनी के लोग होते हैं, दे गेट द कमीशन फ्रॉम द कंपनी। उनका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड उनका सेपरेट रहता है, और जैसे वो मोबाइल सेल होता है उनके आईडी पे रजिस्टर्ड हो जाता है कि आज इतना सेल किया है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे गेट द कमीशन इन देयर अकाउंट। तो अगर कोई कह रहा है कि अगर सर आज मेरा 25,000 का सेल हो गया है
तो वो जानना चाहता है मेरा कमीशन कितना होगा, मुझे आज कितना कमीशन मिलना चाहिए आज का। तो क्या आप बता सकते हैं क्या कितना मिलेगा? इफत, आज ये बंदे ने 25,000 रुपए का सेल किया है, तो कमीशन कितना मिलेगा इसको? इफत, हेलो। 10% ना? 10% ऑफ 25,000, राइट? मतलब आप कहना चाह रहे हो कि 2,500 देंगे, राइट? इफत, सर यस सर। फिर क्या मतलब क्या हुआ इतना समझाने के बाद कि बस सर ये हेलो जो सर। 25। हाँ बोलो। ये 0 से 10 तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, यहाँ का जो ये कमीशन, 3,500. और 10 से लेके 20 तक आपको 5% देंगे हम, और 20 से ऊपर जो 5,000 है उसका हम आपको 10% देंगे। तो 10 से लेके 20 10,000 तक जो आप 1,000। 10,000 रुपीज, तो इसका 5% आप मेरे से ले लो। तो 10% होता है 1,000, 5% होगा 500 रुपीज, राइट स्टूडेंट्स? 10,000 का 10% Yes. होगा 1,000, राइट? तो 5% कितना होगा? Yes. 5% कितना होगा? 500, राइट? इज इट क्लियर? 500. हाँ, तो 500 आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्रीवियस वाला अप टू 10,000 हम आपको 0 रखेंगे, कुछ नहीं देंगे। और 10 टू 20 का आपको 500 मिला हुआ है। तो ये प्लस और जो एक्स्ट्रा जो 5,000 है उसका 10%। 5,000 का 10% एक और 500, राइट? Yes, sir. यस। तो आपको कितना कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा? आपको आपका आज का 1,000 रुपए का काम हुआ है, राइट स्टूडेंट्स? कितना कमाया वो बंदे ने? 1,000 रुपीज, राइट? यस, नो? Yes, sir. सो हाउ विल यू राइट द प्रोग्राम फॉर दिस? अब जो ओनर है वो आपको बोल रहा है सर ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं और मुझे रोज पेन पेपर लेके बैठना पड़ता है, कैन यू राइट अ प्रोग्राम फॉर अस? मैं हर एक का अमाउंट एंटर करते जाऊं और मुझे ये मालूम पड़ते जाना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास 10 सेल्समैन हैं और मैं एंड ऑफ द डे में 10 का ये एंटर करूं सेल, और मुझे आप फटाफट टैक्स बता दो, सॉरी कमीशन बता दो, तो कितना अच्छा रहेगा? बता सकते हो आप? बोलो बोलो स्टूडेंट्स, बता सकते हैं क्या? कितने सेल्समैन हैं आपके पास? बोले सर 10 20, आप बता दो जितने भी सेल्समैन हैं, राइट? अब देखो हम कैसे करते हैं, हम एक का नहीं, पहले एक का करके दिखाते हैं। एक का, चलो पहले हम न्यू किए, वॉइड मेन, एंड आई सेड इंटीजर नहीं करते, लॉन्ग इंटीजर, इंटीजर सेल्स करेंगे और आपको कमीशन कैलकुलेट करना है। तो CLR SCR एंड printf, enter your सेल्स अमाउंट। अगर आप एंटर कर रहे हो तो मैं रीड कर रहा हूं, एंड आई विल बी गोइंग विथ %LD, एंड देन आई विल बी रीडिंग योर सेल्स, आज का सेल्स कितना है करके। एंड देन आई नो दैट कि आप अगर सेल्स लेस और इक्वल टू 10,000 है, 10,000, तो बोले सर कमीशन तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आई एम वेरी सॉरी, नो कमीशन टुडे। बट if it is sale is greater than 10,000, and it is up to 20,000, तो फिर क्या करना है? अब हमको कितना परसेंट देना है? 5%. 5% हम दे देते हैं, चलो भाई दे देते हैं। लेकिन अगर 12,000 ही है उसका तो 5% देना है आपको, 11,000 है तो भी 5% देना है। तो कमीशन क्या होगा? कमीशन होगा जो भी सेल्स है, पहले मैंने जो बोला है वो बात करो, आप 10,000 हटाओ उससे, राइट?
यस और नो? वो बोलेगा सर मेरा 19,000 हुआ, 18,000 हुआ, जो भी 10,000 से एक्स्ट्रा होएगा उसका 5% हम देंगे आपको. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. और 5% मीन्स नथिंग बट 5/100. 5/100 नथिंग बट 0.05. नहीं तो बाद में कोई पूछेगा सर ये 0.05 कैसे हो गया. आई होप इट इज वेरी क्लियर 0.05 कैसे होता है, राइट? Yes. This 5% is 5/100. 5/100 is 0.05. अब नेक्स्ट स्टेप, अगर वो बोल रहा है नहीं सर मेरा सेल इज बिटवीन कितना है, क्या 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 स्लैब डाले थे हमने? 1,000 to 20. नहीं, नहीं, और भी कुछ- 20,000 to 40,000. अच्छा 20,000 to 40,000 किया, तो चलो 20 से 40 भी कर देते हैं. 20 से अप टू 40 किया है तो क्या तो आपको 10%. बताया, तो हम आपको पहला जो है 10,000 का 0%, नेक्स्ट 10,000 का आपका 5% होता है, तो वो उसका 500 रुपीज होने वाला है, राइट? पहला 10,000 जीरो, नेक्स्ट 10,000 का 500. तो मैंने आपका 20,000 का हिसाब ऑलरेडी कर दिया है. तो अगर आप 21,000 बोल रहे हो या 22,000 बोल रहे हो, जो भी अमाउंट बोलोगे, जो 20 से ऊपर जितना भी क्रॉस करोगे मैं आपको 10% दे रहा हूं, राइट? 0.1%. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. पहला जीरो क्या है? पहला जीरो सर वो अप टू 10,000 वाला. दूसरा 500 क्या है सर? वो तो 10,000 से 20,000 वाला. तो 20,000 तक का हो गया मेरा कितना? 500. उसके ऊपर जितना क्रॉस करेंगे हम उसके ऊपर आपको 10% देंगे, राइट फ्रेंड्स? Yes. यस, समझो तो सही क्या हो रहा है. फिर बोलता है सर अगर 40 से क्रॉस किया है या और भी स्लैब ऐसे ही बढ़ाना है तो यू कैन इंक्रीज इट लाइक दिस ओनली, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो इफ समबडी इज क्रॉसिंग even 40,000, so then the commission will be, look at the commission will be पहला 10 0, दूसरा 10 का 500 एंड तीसरा 10 जो है, तीसरा 10 नहीं है, तीसरे में 20 है, राइट? 20 to 40 में कितना आ रहा है? 20 to 40 में 20,000 आ रहा है, राइट स्टूडेंट्स? Yes. हेलो? और वो Yes. 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000 रुपीज, राइट Yes. फ्रेंड्स? 10,000 का 1,000, सो 20,000 का 2,000. तो ये जो 2,000 मैंने लिखा, नेक्स्ट 20,000 का लिखा, तो मेरा हिसाब किताब हो गया अप टू 40,000 का. तो अब जो है आपका जो सेल है उसमें से मैं 40,000 पहले हटा देता हूँ. अब आप 41,000 या 42,000 जितना भी है, अब मैं आपको 20% बोला हूँ तो मैं देने वाला हूँ 0.2, राइट? लेकिन पहले जो 40,000 है उसमें कितना मैं देने वाला हूँ आपको? पहला 10 का 0, नेक्स्ट 10 का 500, नेक्स्ट 20 का 2,000. जो आगे बचेगा उस जो अमाउंट है उसमें पहले 40,000 हटा देता हूं बिकॉज दैट अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन टू यू. एक्सेस अमाउंट जो रहेगा above 40,000 you'll be getting 20% of that. Is that clear students? Yes, no? Yes, Yes. sir. So then Yes. printf what? Your commission amount, your commission amount is %LD, comma क्या है? C and get CH. और हम लोग सेल्स की बात करते हैं. सेल्स डॉट सी. कहाँ पे ब्रैकेट सेमीकोलन नहीं? ओके, चेक करो बाबा, कितना चेक करना है सर? 15,000 नहीं सर, 20,000 चेक करो ना. 20,000 कितना होना चाहिए था इसका कमीशन 20,000 का स्टूडेंट्स? हेलो? Yes, sir. 500. 500 चेक करते हैं.
ओह, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है बाबा, 18,500 आ रहा है। कैसे, क्या हो गया भाई? हम्म, कहाँ पे गड़बड़ हुआ है? 18,500 कहाँ से आया है? चेक करते हैं एक एक। पहला मैंने 10,000 दिया तो 0 ये बराबर है। फिर मैंने 12,000 दिया, 100 रुपीज बराबर है। बिकॉज 2,000 का 5%, 2,000 का 5% कितना होगा? 2,000 का 5%, 100। 2,100, ये बराबर है। और अगर हम 18,000 दे रहे हैं तो 8,000 का 5%, मतलब 400, ये भी बराबर है। राइट स्टूडेंट्स? yes sir. नाटक कहाँ पे हुआ है जरा अभी चेक करते हैं। 19,000 चलते हैं, 19,000 का 450 होना चाहिए, ये भी बराबर है। तो फिर 20,000 में कहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है? भी तो बराबर है। क्या प्रॉब्लम हुआ? 2 lakhs तो नहीं डाल दिया था मैंने स्टूडेंट्स? मुझे ऐसा लग रहा था एक जीरो ज्यादा बढ़ गया, हाँ ऐसे ही कुछ हुआ रहेगा। यस, ये भी बराबर है। अब कोई बोल रहा है सर मेरा तो 21,000 है, तो बताइए सर 21,000 कहाँ पे जाने वाला है? तो अप टू 20,500 है। 21,000 अगर आपका है तो एक्स्ट्रा जो 1,000 है उसका आपको 10% मिलेगा। एक्स्ट्रा 1,000 का 10% मतलब 100 रुपये और मिलेगा आपको। तो 500 प्लस 100, 600 हो जाएगा। राइट? Yes, sir. ये देखो हो रहा है। राइट? क्लियर है? यस। हाँ जब लिखना है तो जब प्रोग्रामिंग की बात हो रही तो तुमको ऐसे नहीं जैसे तुम कर रहे थे। तुम तो ये कर रहे थे कि सर कमीशन इक्वल टू कितना अमाउंट है सर, जैसे टैक्स वाले में। सर मैंने 9 लाख बोला है तो 9 ना, तो सेल्स इनटू, हमने चेक ही नहीं किया और 30% लगा दिया। अरे बाबा, ये प्रोग्राम बराबर है क्या? हैव यू चेक दैट? फिर 20% कहाँ लगाना है, 10% कहाँ लगाना है? अगर किसी ने 2 लाख बोल दिया तो भी आपने 30% लगा दिया। रितिका, रितिका, Yes, sir. कॉमन सेंस तो लाओ कि भाई हम ये यहाँ पे 30 कर दिए तो 20 कब करेंगे? हम कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं क्या? नहीं ना। रितिका, आर वी चेकिंग एनी कंडीशन? विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन we are just applying, multiplying with that number. When are you going to say 10%? When are you going to say it is 0? Are you checking anything? No sir. Then why I have told you so many things that it's 0 when up to 3, 10% up to 5, 20% up to 8, and so on? Why did I told you all those things? It has got a purpose, right? So are you checking all those things? तो हमने क्यों बोला था? ऐसे ही बोल दिया था क्या? हाँ, तो कैप आपने 30% क्यों लगा दिया उसको? आपने सीधा अमाउंट लिया और बोले 30%। लेकिन वो ब्रेन में जो चल रहा था कि ये तो 8 लाख क्रॉस कर रहा है, तो आपने कंप्यूटर में चेक किया क्या? कंडीशन इफ लगाया है क्या कि भाई इसको मैं 30 कब लगाऊंगा? अगर वो मान लो 7 लाख होता तो क्या करते थे? अगर 1 लाख होता तो क्या करते थे हम? राइट? यस। तो अभी यहाँ पे ऐसे ही जैसे अब हम मॉल में जाते हैं और हमारा बिल बन गया तो वहां पे बातें चालू हो जाती कि सर आपका अगर बिल 10,000 से ऊपर है तो हम आपको 5% कैशबैक देते हैं। 20,000 है तो बोले 10% कैशबैक देते हैं। राइट? 17,000 है तो जो भी है 10 से 20,000 इतना कैशबैक देते हैं। और फिर बोले सर अगर आप इमीडिएटली कैश पेमेंट करोगे तो 2% और दे देंगे। स्टूडेंट, हेलो, yes. ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? तो जो उन्होंने बोला ना कि हम आपको 10% देंगे, 20% देंगे, 30% देंगे। सर आप हमारा ये स्कीम है, आप इतने तक का परचेस करोगे तो बोले इतना % डिस्काउंट, इससे ज्यादा कर रहे हो तो हम आपको इतना डिस्काउंट। तो आप कितना डिस्काउंट ले रहे हो उनसे?
तो ये कैसे कैलकुलेशन कैसे होगा? द वे वी आर कैलकुलेटिंग इट राइट नाउ, राइट? और उनका भी स्कीम है, बोले सर स्टार कंडीशन डालते हैं, सब्जेक्ट टू स्टार कंडीशन, हिडन कंडीशन। बोले सर मेरा 8,000 है, तो बोले 8,000 में कोई डिस्काउंट नहीं। मैंने बोला ना 10,000 होएगा तो मैं आपको 5% 10% देता हूँ। तो कस्टमर और 2,000 का परचेस करना चालू करते हैं। सर 9,999 हो गया, सर एक भी नहीं मिलेगा। आपको बोला है 10,000, मतलब अभी फिर वो 1 रुपए का चीज और ढूंढता है जाके, राइट? पूर्वा, पूर्वा, पूर्वा is not there. Yes, sir. Yes, sir. Have you understood what I am trying to tell you? Yes, sir. In real life, where whatever I am doing it today, where it is applicable, right? Yes. Yes. ऐसे जैसे लोन लेते हैं हम लोग, तो उसमें भी रहता है बाबा कितना लोन ले रहे हो? बोले सर आप टू 25 lakhs ले रहे हो, तो बोले सर आपका इंटरेस्ट रेट हम आपको 6% में दे देंगे, 8% में दे देंगे। लेकिन बोले सर आप तो 5% बोल लेते सर, वो तो बोले 1 करोड़ वालों को है, जो 1 करोड़ लेते हैं उनको 5% में देते हैं, सबके लिए नहीं। स्टार कंडीशन अप्लाई। आपका अमाउंट कितना? बोले सर इतना। तो बोले आपका ये टैक्स, आपका ये इंटरेस्ट है। फिर बोला मेरा 50 lakhs, बोले सर आपको इतना मिलेगा। ऐसे सबके अलग अलग, सब स्टार हिडन कंडीशन रहता है, और सब ये ऐसे ही कैलकुलेशन होते हैं जैसे हम कर रहे हैं अभी। तो अभी हमारी बातचीत चल रही थी कि इफ वी हैव बीन गिवन से 10 सेल्समैन, देन हाउ विल यू फाइंड आउट द टैक्स ऑफ ईच सेल्समैन? तो चलो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 सेल्समैन है तो मैंने उसके लिए एरे बना दिया, और 10 के कमीशन आएंगे तो उसके लिए भी मैंने एरे बना दिया, राइट? इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? हेलो? अब मैं सबका ये ले लेता हूं, सबके, सॉरी ये ले लूंगा कि बाबा आप मुझे ये बताओ, 10 सेल्समैन का सेल्स बताओ। तो मैं एक फॉर लूप ले लेता हूं और 10 का रीडिंग ले लेता हूं। सो फॉर, देखो कैसे मैंने चेंज कर दिया प्रोग्राम को। अब 10 का चाहिए, 100 का चाहिए, सबका यही करेंगे। सो आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ठीक है, और इंटीजर आई। और मैं बोल रहा हूं एंटर सेल्स ऑफ, enter sales amount of of एक एक का बोलता हूं। कोई तो घूम रहा है, म्यूट कर दो बाबा। कौन है जो अनम्यूट घूम रहा है? तो एंटर सेल्स अमाउंट ऑफ सेल्समैन परसेंट डी। तो मैंने बोला पहले सेल्समैन का आई 0, सो आई से एंटर द सेल्स अमाउंट ऑफ सेल्समैन 1, देन सेल्समैन 2, देन सेल्समैन 3, देन सेल्समैन 4। तो सभी सेल्समैन के मुझे ये मिल जाएंगे सेल्स, जो ओनर एंटर कर देगा। उसके बाद में मैंने क्या किया, ये पूरा कंडीशन को मैंने फॉर लूप में घुमा दिया। फॉर आई इज इक्वल टू 0, देखो पहले 10 लोगों का सेल्स रीड कर लिया, और उसके साथ में ही चाहिए तो मैं ये पूरा रीड करने के साथ में चेक भी कर लेता हूँ। एक ही फॉर लूप के अंदर मैंने रीड किया, और जैसे ही रीड करता हूँ तो मैं चेक करता हूँ पहला सेल्समैन कि भाई ये जो सेल्समैन है S0 वाला, इज इट लेस देन। देखो आराम से देखो क्या चेंजेस किया, कुछ नहीं किया सर। सेल्समैन दूसरे का बाद में लूंगा, पहले जिसका लिया है अमाउंट, सेल्स अमाउंट, पहले उसका हिसाब किताब कर देता हूं मैं। अगर ये पहला सेल्समैन S0
अगर उसका अमाउंट लेस देन 10,000 है तो उसका C0 का यानी पहले सेल्समैन का कमीशन भी, C0 मतलब कमीशन ऑफ फर्स्ट सेल्समैन, S0 मतलब सेल्स ऑफ फर्स्ट सेल्समैन, C1 मतलब कमीशन ऑफ सेकेंड सेल्समैन, S1 मतलब सेल्स ऑफ सेकेंड सेल्समैन। और जब ये सब हो गया है, रीडिंग हो गया है, अब रीडिंग होने के बाद में मैं करूंगा इनको स्टूडेंट्स कि ये मैंने फॉर लूप क्लोज कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं 10 सेल्समैन का सेल्स क्या था और सामने कमीशन क्या, एक टेबल प्रिंट कर दूं आपके सामने, टेबल, राइट। तो मैं प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट, देखो अच्छे से, ये सेल्स रहेगा और साथ में मैं आपको कमीशन लिख के दे रहा हूं, कमीशन, ठीक है। सेल्स लिखा और कमीशन लिखा, हेडिंग लिख दिया। और फिर मैं एक फॉर लूप लेके आ रहा हूं, 10 लोगों का मैं सेल्स बताऊंगा जो आपने मुझे दिया था, 10, और उनका ही मैं आपको कमीशन दे रहा हूं, परसेंट LD थोड़ा दूर दूर रखा हुआ है क्योंकि उनके बीच में भी दूरी है, सेल्स और कमीशन के बीच में, इसलिए यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस रखा हुआ है। और एक प्रिंट हो जाएगा तो दूसरे को दूसरी लाइन में जाना है, एंड देन SI, CI, ये प्रिंट करना है। कितना अच्छा है सर, एक साथ 10 करना है या 100 करना है वो भी हो जाएगा। सो लेट मी रन दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो हम लोग 4 एरर क्यों बता रहे हैं? ओह, इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर्स, किधर पॉइंटर है बाबा? लिमिटेशन है भाई, पॉइंटर नहीं है। स्टार जो होता है पॉइंटर होता है स्टूडेंट्स, इसलिए वो चिल्ला रहा है। फंक्शन कॉल मिसिंग, पहले ब्रैकेट देख लेते हैं, यहाँ क्या मिसिंग है? ओ, ये सब गलतियां ठीक करते हैं पहले। और क्या है? स्टेटमेंट मिसिंग, और पहले ये ठीक, सेमीकोलन ठीक करो। और क्या गड़बड़ है? पहले जितना गड़बड़ है वो ठीक करते हैं। इससे वहीं पहुंच गया, इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर। लीगल कुछ भी इलीगल नहीं है, फिर भी परेशान है ये, इलीगल नहीं है। नथिंग इज इलीगल। इसको पॉइंटर का चक्कर क्या समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे जरा स्टूडेंट मैं ट्रायल ले रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। A = मैंने 0.05 रखा हुआ है,
B इज इक्वल टू मैंने 0.1 रखा है और C इज इक्वल टू 0.2 रखा हुआ है। जस्ट देखते हैं क्या नाटक कर रहे हैं। A मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ C। हाँ समझ गया। C इज आई राइट CC। एक C एरे भी था, C वेरिएबल भी आया, सो आई राइट CC, कोई बात नहीं। CC is CC. Declaration is not allowed here. Okay. मैं नहीं करूँगा यहाँ पे डिक्लेयर। शिफ्ट इंसर्ट, फिर से पॉइंटर नाटक कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। स्टार एक पॉइंटर होता है, वो तुम लोग को अभी तक मैंने बताया नहीं है, इसके लिए परेशान कर रहा है। चलो मैं अब ब्रैकेट में बोलते हो तो चलो 5/100 करके भी देख लो। 5/100 डायरेक्टली तो नहीं करना पड़ेगा, 5/100.0 बताना पड़ेगा, बिकॉज 5/100 इंटीजर बाय इंटीजर 0 हो जाएगा। तो चलो अभी करेगा क्या, फिर से वही नाटक है। रोल ओ वही सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। ये जो स्टार के ऊपर अटक रहा है वो। स्टार स्टार चलो एक काम करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ अभी। 0.05 इंटू, आप देखते हैं क्या होता है। और दूसरा कौन सा था, 0.10 इंटू, तीसरा है 0.20 इंटू, ये सब हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, देखते हैं चल जाएगा तो अच्छी बात है। इलीगल यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, नाटक चालू है। हो समझ गया, अब ठीक है, ये ठीक है, ये समझा। चलो स्टूडेंट्स ठीक हो गया सब। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, ये एस आई नहीं लिखा था स्क्वायर ब्रैकेट में, केवल एस लिखा था। ठीक है, तो चलो अब हम लोग 10 लोगों का एंटर द सेल्स अमाउंट ऑफ, मान लो किसी का 10,000 है, ठीक है, किसी का 12,000 है, किसी का 14,000 है, किसी का 16,000 है, किसी का 18,000 है, कोई 20,000 वाला भी है, कोई 22,000 वाला भी है, कोई 24,000 वाला भी है, कोई 26 वाला है, कोई 28 वाला भी है। ओह जरा चेक करो भाई, हर एक सेल्समैन का कमीशन बराबर आ रहा है क्या भाई स्टूडेंट्स? हेलो, समझ रहे हैं अभी? तो हमने हमारे जो ओनर है उसके लिए अच्छा काम करके दिया कि नहीं दिया? हाँ दिया ना, दिया कि नहीं दिया? हाँ सर दिया। अब अगर कोई बोल रहा है कि सर लिस्ट के साथ बताओ ना वो क्या नाम है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि इससे हमें वो क्लियर नहीं हो रहा है कि ये कमीशन किसका है, किसका सेल है, राइट? मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा डाउट क्या है। जस्ट हैव अ लुक हियर, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सर कैन यू
अभी जैसे ये मान लो 20,000, 16,000, 26,000, ये किसका अमाउंट है? ये कैफ का है, पूर्वा का है, किसका सेल्स है? कैसे आप बताओगे? तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? नाम बताऊं मैं सबका? हाँ, तो नाम बताते हैं सबका हम। तो नाउ आज नया चीज आ रहा है कि सर अगर मुझे नाम लेना है, नेम सबका चाहिए, तो कितने नेम स्टोर करने वाले हो आप? 10 नेम्स, राइट स्टूडेंट्स? Yes. एंड व्हाट इज द साइज ऑफ ईच नेम? मतलब जैसे हर एक नाम जो आएगा उसका मैक्सिमम लिमिट कितना होगा? Each name is of how many characters? It is 4 characters, 5 characters, 10 characters. So I'm saying I know that my none of the name will go beyond 10 characters. So I'm taking 10 names, each of 10 characters. That is the meaning of 10, 10. 10, 10, matlab first tense says how many names are going to be there? Sir, there are 10 names. 10 names. What is the next tense says? What that next tense And says? Next is Size. the length of each name, right? Once I say 20, once I say 20, this says that there are 10 names, each can be up to 20 characters, 20. right? Yes, because बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं, बोले वो अपना मदर फादर सब दुनिया भर का नाम लिख देते हैं, खत्म ही नहीं होता है, तो बोले सर वो 20 में भी नहीं आएगा, तो बोले सर इसके लिए 30 कर देते हैं फिर. So what is the meaning of this, sir? We are going to take 10 names, each of 30 characters long, right? इसमें भी फिट नहीं होएगा तो फिर आप सर 50 characters कर लो, और क्या बोलूँ अभी, right? There are 10 names, each of 50 characters long, right? बस ना, इससे ज्यादा तो नहीं होगा. Otherwise, we are wasting memory. So right now, I'm not going for 50, but I'm just going with the 10, and I'm saying here enter name and sales amount of salesman 1. Again I'll say enter name, and so name जब read करोगे, so you say %s, very important. %s, s stands for string, so I'm reading one string. Where are you going to read? So name comma name. अरे सर ये क्या, मुझे समझा नहीं. name 0 और एड्रेस क्यों नहीं लिखा सर? कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है सर, यहाँ पे एम्परसेंड नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रिंग्स में एम्परसेंड नहीं होता है, whereas other variables has got ampersand. Only the string does not have an ampersand. Why, sir? Because the name could be 4 characters, it can be 8 characters, it can be 10 characters, it can be 12 characters. Its size fixed नहीं होता है. So after getting the name, then only the system will find out the space for that name. So initially I do not know, since I do not know the size, so I cannot decide the memory for name. So address will be decided only after getting the name, then only we can decide the address. All right, students? Looking at the length of the string, then only the address can be decided. So initially we cannot decide the address for names, but whereas float रहता तो उसका पहले से पक्का है 4 बाइट, इंटीजर है तो 2 बाइट, लॉन्ग इंटीजर है तो 4 बाइट. लेकिन नेम का क्यों एड्रेस नहीं दिया? बताया ना सर, नेम का साइज ही पक्का नहीं रहता है, तो कैसे देंगे हम, राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो मैंने एक और यहाँ पे टाइटल दिया नेम. तो नेम भी रहेगा, सेल्स भी रहेगा, और उसका कमीशन भी रहेगा. तो अब मैं यहाँ पे नेम भी प्रिंट करने वाला हूँ. जस्ट देखो 10 बच्चों का नाम भी आएगा. %s. Just have a look. Last program में आज का, I know that my students are small students, they must be tired. नहीं तो थोड़ा देर के बाद कब कैफ बोलेगा सर वो थोड़ा कुछ खाने पीने का टाइम हो गया है. छोटे बच्चे सर, भूख लग जाती है, आपको तो पता है, राइट? ओ कैफ, भूख लग गया? नहीं सर, भूख किधर लगेगा सर, हम तो अब आजकल यही सी प्रोग्रामिंग ही खाते हैं. आई नो दैट दिस इज माई फ्यूचर नाउ, राइट? सर आप नहीं भी पढ़ाते हो तो हम अकेले में भी बस यही पढ़ते हैं. आई नो दैट दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड अस द ब्रेड एंड बटर इन माई लाइफ. वो भाग रहे हैं इससे, उनको भागने दो. तो जस्ट हैव अ लुक स्टूडेंट्स कि नेम भी आ गया, और सीरियल नंबर भी चाहिए क्या सबका स्टूडेंट्स?
चलो मैं आपको बोलूँ तो सीरियल नंबर भी डाल देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जो बोलोगे सब पड़ जाएगा। %D सीरियल नंबर भी आ गया। तो सीरियल नंबर मेरा I से स्टार्ट कर रहा हूँ, I+1। तो देखो 4 चीज प्रिंट होंगी, I+1 यानी सीरियल नंबर 1, नेम और उसका सेल्समैन का जो सेल्स है और कमीशन है। चलो अब हम लोग इसको रन करते हैं। चलो एंटर द नेम एंड सेल्स। नेम क्या है बाबा? कैफ। सेल कितना है कैफ तुम्हारा? सर 30,000, राइट। दूसरा नाम बोलो, पूर्वा। सेल्स सर 35,000। तीसरा नाम बोलो, इफत। सेल्स 40,000 सर। चौथा नाम अभी अभी आया था कि रितिका और इफत के बहुत सारे फ्रेंड आएंगे अभी, सॉरी ये कैफ के, क्या नाम है कैफ तुम्हारे फ्रेंड? हर्ष, राइट। सेल्स हर्षल, हाँ हर्षल। हर्षल है कि नहीं कि भाग गया कहीं? सेल्स 0। और बताओ और कौन कौन है? हाँ कैफ तुम्हारे फ्रेंड। सिक्का, यस सिक्का। सिक्का का सेल्स बोले 5,000। और कौन है? विष्णु, स्पेशल वॉइस वाला, राइट। इसका सेल्स कितना रखूं? सर 8,000। और कोई है तुम्हारा फ्रेंड? हाँ यस, ये तो सब स्पेशल नाम है बाबा, कॉलेज के टाइम लेक्चर्स के टाइम में पूरा डिस्टर्ब करते हैं। इसका सेल्स कितना है? सर अभी वो उस काम पे ही नहीं लगा है, राइट। तो सेल्स इसका जाने दो, फिर भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। चलो ये काम ही कर रहा है सर जॉब पे, इसलिए लेक्चर अटेंड नहीं करता है। 50,000 है। और बताओ विघ्नेश। विघ्नेश कितना सेल्स है इसका? 9,000। चलो और बताओ लास्ट एक और नेम बोलो फटाफट। काजोल। काजोल, यस काजोल। व्हाट इज द सेल? काजोल सेल 45,000। ओ चेक करो बाबा, सबका सेल आया हुआ है। कैप तुम्हारा चेक करो, 30,000 का 1,500 कमीशन बराबर है क्या? सब लोग अपना अपना चेक करो। काजोल तुम्हारा चेक करो, 45,000 का 33,500 बराबर मिल रहा है क्या? Yes, sir. यस। और बाकी देखो 10,000, 5,000, 8,000, 9,000 सबके जीरो हैं। इट इज लेस देन 10,000, राइट। Yes, sir. समझ रहे हैं? तो अब ये बंदे को, ये जो ओनर है उसको तो बहुत आराम हो गया यार, ये तो बहुत अच्छा काम किया यार तुमने, सबका मुझे बता दिया, राइट स्टूडेंट। समझ रहे कि नहीं? सीरियल नंबर भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है, और थोड़ा अलाइनमेंट, थोड़ा डेकोरेशन। पहले चीज हमको बनाने आनी चाहिए किचन में, फिर उसको हमें सर्व कैसे करना है, कितना डेकोरेशन करना है, बात की बात है। पहले हमें कैलकुलेशन आना चाहिए। नाउ आई नो हाउ टू कैलकुलेट इट। जो आगे डेकोरेशन है सिस्टमेटिक, जो नंबर इधर उधर जम्बल्ड हैं लेफ्ट राइट, उनको अच्छे से सजाना, दैट इज लेटर पार्ट, वी कैन डू दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट स्टूडेंट्स? हेलो। Yes, sir. So first and foremost thing, we should know how to find out all these things. So with this, I will wind up here. Is that clear, students? I hope you all have understood little bit. आज जो भी हमने किया होगा थोड़ा तुमको समझा होगा, right? Yes, sir. और सब अभी ले लो, फ्री में है, जितना भी पहले का भी है सब ले लो बेटा। I can give you right. हाँ तो जो है वो लेके जाओ बाबा तुम लोग। इधर हो तुम लोग, पहला देखो तो सही। हाँ, so what all things you want, you tell me. So today also. Arey, I don't remember the file name. You have to. I told every time that you have to give me the file name. Shells. क्या?
Functions. Yes, sir. Function. बीन Income tax. इनकम टैक्स इधर है, सब इनकम टैक्स। तुम लोग ले पढ़ते, तुम सिर्फ पढ़ते हो कि सिर्फ ले लेते हो, बस कुछ देखते हो बाद में? देखो ये मैंने अभी किया, आईटी आया तुम्हारे पास, अब आ रहा है सेल्स वाला, अभी जो किया था टर्बो सी बिन, सेल्स भी आ रहे हैं जो अभी अभी किया है। इसके बाद में आपके पास में फंक्शंस वाले तो बहुत थे। फंक्शंस में टर्बो सी बिन, function 1, function 2, right? वो मैं कर रहा हूँ लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता है इसमें। वो सब मैं कर रहा हूँ, एक सेकेंड। बिन फंक्शन 4 अभी हमारे, और भी बहुत सारे थे हमारे पास। शॉर्टिंग वॉटिंग के मिले थे कि नहीं? bubble sorting. हाँ हिमाक्षी, Yes, sir. हिमाक्षी, यू आर सेइंग समथिंग, बोलो बेटा। हिमाक्षी, So that was what I was telling. Got it, sir. About bubble sorting, whether you are telling. अच्छा बबल शॉर्टिंग नहीं मिला है, यू गॉट इट और यू डोंट हैव दैट प्रोग्राम? बबल यू हैव और यू डोंट हैव? No, sir, we don't have bubble. So it's there in the chat. It's there in the chat. Bubble selection, I think they're all there, right? Yes, sir. Himakshi, Yes, bubble and selection is there. okay. Yes, sir, So got then, it. I think prime function नहीं है तुम्हारे पास, right? Prime function नहीं है. So I'm giving prime using function. फिर मैंने एक factorial का function किया था, right? LCM GCD का function किया था मैंने. Yes, sir. LCM GCD का function किया था. Factorial का function है हमारे पास. LCM GCD function. Now what else we are having? हाँ factorial का function. आप लोग पूरा लिस्ट बना के रखा करो. आई कैन गिव यू फैक्टोरियल फंक्शन. कौन सा वाला है इसमें? चलो दोनों कोई तो रहेगा. और कुछ है स्टूडेंट्स? इफ यू कैन रिमेंबर आई डोंट माइंड. स्टूडेंट्स हेलो, Yes, sir, checking it. तो चेक कर लो, चेक कर लो.
आज देखो मैं सब दे रहा हूँ, जितने भी डॉट सी हैं मेरे सब उठा के दे रहा हूँ एक साथ, ठीक है। मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको प्रॉमिस किया था, जितने भी सी प्रोग्राम है मैं सब दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें सब आपके आ गए हैं सी प्रोग्राम्स। $165 बाप रे, देखना तुम्हारे काम का कितना है, ठीक है। और ये फाइल को मैं थोड़ा क्या करना पड़ेगा इसको, हाँ वही देख रहा हूँ, कंप्रेस किधर है इसमें। कंप्रेस, यस। क्या भाई कंप्रेस नहीं हुआ? हाँ हो गया, यस। अब यस, अभी मैं आपको एक कंप्रेस वाला फाइल भेज रहा हूँ। तो अभी तक जिसका भी जो भी रह गया होगा वो ये फाइल से डीकंप्रेस करके सब ले लेना। सी प्रोग्राम्स, सी प्रोग्राम्स, ये जिप है, ठीक है। नाउ यू कैन नॉट टेल कि अब हमारे पास ये नहीं वो नहीं, सब कुछ एक साथ मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। Okay. So all the programs till now whatever I have done with you all, सब कुछ उसमें है करके, इवन एक्स्ट्रा भी है, वी हैवंट, जो अभी तक करना बाकी वो भी मिलेंगे बाद में, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? एंड ऑल द प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम्स हैं, जो आपके सामने रन होते हैं वो वाले प्रोग्राम्स हैं। पैलिंड्रोम इज नथिंग बट व्हाट यू कैन से, आई विल डू इट राइट नाउ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पैलिंड्रोम होता है क्या, पहले वो बताओ कि बाबा नंबर को उल्टा करो सीधा करो, नंबर फिर उल्टा सीधा एक जैसा होना चाहिए, राइट। जैसे 131 को उल्टा करो सीधा करो, बोले सर क्या होगा, सेम नंबर आएगा, राइट। यस, तो उसको हम बोलेंगे पैलिंड्रोम। तो चलो अगर आप बोल रहे हो तो मैं पैलिंड्रोम करता हूँ आपको। तो मैं न्यू प्रोग्राम लिया और उसमें कुछ नहीं, अगर आपको रिवर्स वाला प्रोग्राम आता है तो नंबर को उल्टा कैसे करते हैं पहले वो देखो। तो मैंने एक लिया, ये देखो नंबर लिया, इंटीजर नंबर, नंबर, और नंबर का रिवर्स के लिए एक वेरिएबल रखा, अब भी 0 है या, और मेरा एक आर का वेरिएबल का जरूरत है, CLR SCR, printf, enter an integer scanf %d %n। नंबर मिल गया। आप सबसे पहले बोले पैलिंड्रोम बताओ सर, तो क्या बताना है सर कि नंबर को उल्टा कर दो पहले, और देखेंगे जो ओरिजिनल और उल्टा दोनों एक जैसा होएगा, सेम होएगा तो फिर। लेकिन जब जो नंबर है उसको उल्टा करने जाऊंगा तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर तो उड़ जाने वाला है। तो पहले इसका एक डुप्लीकेट मैं मेरे पास कहीं संभाल के रख देता हूँ। तो एक वेरिएबल में मैंने नंबर को संभाल के रखा है। ओरिजिनल नंबर क्या था ये तो मुझे पता होना चाहिए ना स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स, आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मैंने, अब वाइल नंबर इज नॉट 0, अब ये नंबर का तोड़फोड़ चालू हो जाएगा। तो मैंने r इज इक्वल टू नंबर %10 किया, एक रिमाइंडर आया, और रिमाइंडर को मैंने रिवर्स के पास भेज दिया, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स, ये सब प्रोग्राम लिखे हुए हैं तुम्हारे पास। प्लस r किया, नंबर इज इक्वल टू नंबर बाई 10 किया, ये होता रहेगा जब तक नंबर 0 नहीं होएगा। जब 0 हो जाएगा तो आई विल गेट रिवर्स, एंड दिस इज द रीजन आई केप्ट x इज इक्वल टू n, बिकॉज मेरा n यहाँ पे 0 हो जाता है। तो मैं चेक किससे करूंगा कि वेर इज माई ओरिजिनल नंबर, आई डोंट हैव ओरिजिनल नंबर सर, आई वाज हैविंग बट आई लॉस्ट इट इन दिस व्हाइल लूप, बट सर डोंट वरी आई केप्ट द कॉपी। जैसे कभी कभी पापा के पास सब पैसे खर्चा हो जाते हैं तो मम्मी आती है सपोर्ट करती है, राइट, ये है, डोंट वरी, आई केप्ट इट फॉर इमरजेंसी, राइट स्टूडेंट्स। होता है कि नहीं होता है? तो बातें वैसी ही हैं भाई कि नंबर ये 0 होने वाला है, उसके पहले उसका एक कॉपी सेव करके रखा गया है। तो आई एम चेकिंग राइट नाउ is what I can say here is x
or is reverse is same as x. अगर रिवर्स x ही है, दोनों एक ही है, तो बोले बस इसी को तो पैलिंड्रोम बोलते हैं, राइट? printf %d is पैलिंड्रोम। ये पैलिंड्रोम है। मतलब कौन सा x? अब यहाँ पे n नहीं बोलोगे, n तो 0 हो गया, यहाँ पे बोलना पड़ेगा x इज पैलिंड्रोम। ओके, एल्स अगर वो इक्वल नहीं है सो आप सीधा बोलो printf %d is not a palindrome। अगर दोनों इक्वल रिवर्स और इक्वल एक है तो हम बोलेंगे पैलिंड्रोम है, नहीं तो ये नहीं है। ये मैंने सेव किया और मैंने इसको ऐसे किया और मैंने palin.c कर दिया। सिंटैक्स कहाँ पे मिसिंग हो गया है? n इज इक्वल टू n बाई, नंबर ले लेते हैं हम लोग 1 to 1। 1 to 1 क्या है? पैलिंड्रोम, राइट स्टूडेंट्स? हेलो, Yes, sir. Yes. अगर मैंने नंबर चेंज कर देते हैं 1 2 3 4, बोले 1 2 3 4 इज नॉट अ पैलिंड्रोम, राइट? इज इट अ पैलिंड्रोम? Yes. No, sir. तो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। फिर आप दूसरा ट्रायल ले लो, सर 1551, सर 1551 इज अ पैलिंड्रोम, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो सर ये तो नंबर का पैलिंड्रोम है, अगर आप बता ही रहे हो तो आप मुझे नेम वाला भी तो पैलिंड्रोम बताओ। नेम में जो बोलते हैं नितिन तो बोले नितिन, मलयालम तो बोले मलयालम, राइट? तो वो स्ट्रिंग को उल्टा करके फिर चेक करके बताओ कि whether the reverse string and the original string both are one and the same thing. How can you tell that it is a palindrome? I hope you are getting my point, what I am trying to tell you, students. Hello? But don't worry, आज नहीं करेंगे, I'll do it for you all. मुझे याद करा देना, मैं स्ट्रिंग का भी पैलिंड्रोम आपको करके दिखा दूंगा, क्योंकि ऐसे बढ़ेंगे तो मैं और बढ़ाते जाऊंगा। टाइम ऑफ है तुम्हारा, राइट स्टूडेंट्स? यस। तो अच्छे से पढ़ते हैं, फिर याद नहीं रहता है कि हमारे 2 घंटे कहाँ चले गए। स्टूडेंट्स, आई होप वो जो टैक्स पार्ट, कमीशन पार्ट, सेल्स पार्ट सबके माइंड में रहेगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, राइट? And if you look at this one, so 60 students were there right now. I could see only 48 are there. All these people are just wasting their parents' money. That's all. More than 120 students have taken the admission. I don't know where are they and what they are doing. Right? Only the God can save them. और कुछ कोई कर नहीं सकता इनका। Hard work करना नहीं है. They want everything in their life. How come they will get it? Ifat, so very good Ifat for giving the answer. You give me the answer, correct answer, 1,10,000 and then 40,000 and whatever it is, right? Thank you, sir. Yeah, very good बेटा, very good. Keep it up. ऐसे ही माइंड अप्लाई करो तभी प्रोग्राम हो सकता है बेटा। अगर प्रोग्रामिंग इज नॉट डिफिकल्ट, लॉजिक ब्रेक होना चाहिए, जो बोला जा रहा है उसको समझना चाहिए, एंड देन प्रोग्राम तो अपने आप हो जाता है। पहले हमें समझता ही नहीं कि करना क्या है सर इसमें, राइट? और आज जैसे इफत ने बोला सर समझ तो गया, अब आगे भी नहीं समझ में आ रहा लिखना क्या है। अब इसमें लिखना क्या था? पूरा प्रोग्राम इफ के ऊपर में था। क्या इफ सर ने नहीं पढ़ाया है क्या? सर पढ़ाया था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है सर कैसे लिखना है, राइट? इफत, प्रोग्राम किसके ऊपर जा रहा था? इफ के ऊपर है ना पूरा? Yes, sir. यस। फिर क्या हो रहा था? व्हाई यू सेड सर आई कांट बी एबल टू राइट सर? नो कॉन्फिडेंस, राइट? Low confidence. हाँ, प्लीज डू प्रैक्टिस ऑल दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स, प्लीज डू प्रैक्टिस most of the programs. Whatever program list I have given you, still if you are not getting anything, every day I am telling you, please you tell me like this, sir ये वाला प्रोग्राम फिर से कर सकते हैं क्या हम लोग, और प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? Whatever best possible I could do for you in this virtual classroom, I will do it for you students, don't worry. लेकिन जब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा तो फिर आपका भी अच्छा आउटपुट आना चाहिए। It should be both ways, it should not be one way. Students, आप प्लीज डाउट्स लेके आओ,
हम आपका सॉल्व करते रहेंगे। आप इतने दिन से प्रोग्राम मांग रहे थे, मैंने प्रोग्राम दिए। बीच बीच में किसी ने बोला सर ये प्रोग्राम फिर से करो, ये करो, मैं वो भी करते रहता हूँ। आप बोलो, आई विल डू इट फॉर यू। कोई भी प्रोग्राम नहीं समझेगा, आप 4 बार पूछो, 10 बार पूछो, बिकॉज मुझे भी ये है कि मैं आगे जाने का कोई मतलब नहीं टिल माई स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। मैं ग्राउंड फ्लोर ही अच्छे से नहीं बनाऊंगा तो फर्स्ट फ्लोर में जाने का क्या मतलब है? फर्स्ट फ्लोर एक स्टेप और बढ़ाऊंगा, मेरा ग्राउंड फ्लोर ही कोलैप्स हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर ही सब नीचे आ जाएगा। तो I said kept on telling you that I'm ready to give you more time in the basics. आपके बेसिक जब स्ट्रांग होते जाएंगे, भले इट मे टेक मोर टाइम, देन ओनली आई विल मूव अहेड स्टूडेंट्स। ठीक है? So please do ask me whenever the next class is there, say on Monday. Come out with, everyone should come out with one doubt. पूछो आके मुझे, I'll be more happy. Okay, students. Till then, Yes. take care. Okay, चलो। All of you, please come out with the doubts. Monday में जब सबसे बात करूँ, सब लोग एक एक डाउट पूछो मुझे. All of you. Okay, students. Yes, चलो Okay, बेटा, sir. take care. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। Thank you बेटा। अटेंडेंस जरा लेने दो मुझे। ओके बेटा, चलो टेक केयर। थैंक यू। Thank you, sir. Bye. चलो बाय। Bye. थैंक यू सर। Thank you, sir.